Good morning, students. As you all know, we were going through chapter number 4, planning. Till now, we have discussed about definition of planning and importance of planning. In today's video, we'll cover up features of planning and limitations of planning. Planning क्या होता है, कल अपन ने डिस्कस किया था. It is deciding in advance what to do and how to do. It bridges the gap between where we are and where we want to go. ठीक है. It is setting objective and deciding course of action कि किस तरह से उसको अचीव करेंगे, ये अपन ने डिस्कस किया था. Now let's talk about features of planning. Features of planning. ठीक है. Features of planning. First feature of planning is planning focus on achieving objectives or goal. प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. अपन ने बात किया था प्लानिंग में होता क्या है, व्हाट इज प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव सेट करना और कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना कि कैसे उनका ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. तो दैट इज द फीचर. क्या है, स्पेसिफिक गोल्स आर सेट ड्यूरिंग द प्लानिंग. प्लानिंग में क्या करते हैं, ड्यूरिंग प्लानिंग goals are set, goals or objectives are set, and appropriate course of action is decided to achieve the goals. Thus planning is purposeful, all goal oriented or objective oriented process. ठीक है. प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे कह रहे हैं अपन बेटा, कि ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस गोल्स आर सेट out in the plans during planning. Yeah, we can say that goals are set out in the plan along with activities to be undertaken to achieve those goals. Thus planning is purposeful. Why planning is purposeful? During planning goals are set and also appropriate course of action to achieve those goals. तो पहला फीचर क्या है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. कैसे, तो गोल्स, basic goals या specific goals are set out in the plans and also the course of action to achieve those goals or objective. That's why we can say that planning is purposeful. Is it clear? Second thing हमारे लिए जो आता है, planning focus on achieving objective बाद planning is importance से मिलते जुलते हैं बेटा ये, primary function. Planning is primary function. Planning is primary. There are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. But first function is planning, which lay down the base for all other managerial function. That's why it is a primary function. Planning is primary कैसे, all other managerial functions follow the planning. ठीक है. And they are performed within the framework of the plans drawn. Follow the planning and are done within the framework. ठीक है, जो कहाँ बनाया गया है, प्लान्स में बनाया गया है. Thus planning precede other function. This is also referred to as primary function of plan. Primary, ठीक है, क्या, function of management. Why planning is primary function of management? All other managerial function follows the planning and all other managerial functions are performed within the framework drawn in the plans. Why planning is primary function? Because all other managerial functions follow the planning and all other managerial functions are performed किसके according, within the framework drawn during the plans. Is it clear? Third is planning is pervasive. What do you mean by pervasive? क्या मतलब होता है pervasive का? Pervasive के लिए another term that we can use is universal, which is present everywhere. ठीक है. प्लानिंग को pervasive कहने का क्या कारण है बेटा, समझना. Though planning is considered as a major activity of top management, but planning is done at all level or in all departments. प्लानिंग को परवेसिव कहने का कारण क्या है बेटा, क्योंकि वैसे तो ये माना जाता है कि इट इज ए फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, बट it has to be performed by all level of management and in all department. That's why planning is
परवेसिव और यूनिवर्सल। क्यों है बेटा, समझ में आ रहा है क्या कि प्लानिंग को परवेसिव या यूनिवर्सल कहने का कारण क्या है कि इट हैज़ टू बी डन एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। नाउ अंडरस्टैंड, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन क्या बन सकता है। टॉप लेवल प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाना किसका काम है, टॉप लेवल का। मिडिल लेवल मेक्स द डिपार्टमेंटल प्लानिंग, डिपार्टमेंटल लेवल प्लानिंग, डिपार्टमेंटल मतलब मार्केटिंग वाला मार्केटिंग से रिलेटेड, परचेज वाला परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन से रिलेटेड, एंड लोअर लेवल जो है वो डे टू डे ऑपरेशन की प्लानिंग करेगा, डे टू डे एक्टिविटीज़ की। अंडरस्टैंड दिस। प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज though planning is considered as a major activity of top level, but all level of management has to perform the function of planning. It has to be done at all level of management. There are 3 level of management, top, middle and lower. ठीक है, top level plan for organization as a whole, middle level makes the departmental planning, and lower level make the planning for day to day activity of business. That's why planning is pervasive. Why planning is pervasive? Because it has to be performed at all level of management. 1 mark question क्या बनेगा, टॉप लेवल किस तरह की प्लानिंग करेगा, फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, मिडिल लेवल फॉर डिपार्टमेंटल, एंड डे टू डे एक्टिविटी किसका पार्ट हो गया हमारे लिए, लोअर लेवल का। ठीक है, फोर्थ इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। Why planning is continuous? Plans are made for a specific time period, say for 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 1 day. Plans are made for a specific time period or a specific activity. After expiry of that specific period or completion of that work, new plans has to be drawn. Planning continuous क्यों है? क्योंकि plans जो draw किए जाते हैं वो specific time period के लिए draw किए जा रहे हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए किए जा रहे हैं। जैसे ही वो टाइम पूरा होगा या वो एक्टिविटी पूरी हुई, आपको नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों है कंटिन्यूअस? प्लान्स आर ड्रॉन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे ही वो टाइम पूरा हुआ, काम पूरा हुआ, नए प्लान्स बनाने हैं। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। फिफ्थ इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। वी ऑलवेज प्लान फॉर फ्यूचर, जो हो गया उसके लिए थोड़ी प्लान करेंगे। प्लान हमेशा किसके लिए किया जाएगा, फ्यूचर के लिए। इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना है आपको, फॉरवर्ड लुकिंग, कि प्लानिंग को क्या कहा जाता है हमारे लिए, फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक क्यों? द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट द फ्यूचर इवेंट। द पर्पज ऑफ, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, द पर्पज ऑफ planning is to meet future event effectively to the best advantage of an organization. The purpose of planning is to meet future events. It implies peeping into the future. What implies planning? Planning implies peeping. Peeping means झांकना into the future. Analyze it, predict it. ठीक है, प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक क्यों कहते हैं? पहली चीज यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक क्यों है? क्योंकि अपन इसको किसके लिए बना रहे हैं, टू मीट फ्यूचर इवेंट्स, टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, सेकेंड चीज आपको क्या ध्यान रखना है, इट इन्वॉल्व्स पीपिंग इनटू फ्यूचर, पीपिंग इनटू फ्यूचर, पीपिंग इनटू मतलब झांकना हो गया, पीपिंग इनटू फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद क्या है, एनालाइज इट एंड प्रिडिक्टिंग इट। एनालाइज करना फ्यूचर में क्या होगा या फ्यूचर कैसा होगा उसको प्रिडिक्ट करना किसका काम है, प्लानिंग का। और उसको आपको प्लानिंग क्या कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए फॉरवर्ड लुकिंग। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई प्लानिंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवली। उसके बाद क्या है, इट इंप्लाइज, प्लानिंग इंप्लाइज पीपिंग इनटू फ्यूचर, predict it, analyze it and use it for the best advantage of the organization. That's why planning is considered as a futuristic or forward looking function. Is it clear? Sixth जो फीचर आपको ध्यान रखना है प्लानिंग का, वो है
Planning involves decision making. Planning involves decision making. Planning essentially involves choice from various alternatives and activities. Planning involves choice from various alternatives. ठीक है, प्लानिंग का है क्या? प्लानिंग कब होगी? जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है. इफ नो ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल, नो प्लानिंग कैन बी डन. आपके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, पता है कि यही काम करना है, तो फिर प्लानिंग करोगे किसके लिए? प्लानिंग वही होगी जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. तो प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल or possible course of action, there is no need for planning because there is no choice. No choice, no planning. No choice, no planning. Planning को involves decision making में क्या ध्यान रखना है आपको बेटा? Planning essentially involves choice from among various alternatives and activities. If there is only one possible course of action or alternative, there is no need for planning. Is it clear? Next is planning is mental exercise. Planning is mental exercise or mental activity. Planning is an activity of thinking rather than doing. ठीक है, planning is an activity of thinking rather than doing. क्या है? Planning requires application of mind, involves farsightedness, intelligent imagination और sound judgment. तीन क्वालिटी. क्या क्या हो गया? farsightedness, intelligent imagination और sound judgment. फारसाइटनेस, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. और ये किससे रिलेटेड है? माइंड से. तो प्लानिंग इन रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड. प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इंक्लूडिंग वर्ड फारसाइटनेस, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. तो इट इज बेसिकली एन एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग. इज इट क्लियर? फीचर्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन. क्यों था प्राइमरी फंक्शन? क्योंकि सारे फंक्शन इसको फॉलो कर रहे हैं और जो भी फंक्शन होंगे विद इन द फ्रेमवर्क ड्रॉन ड्यूरिंग द प्लान्स. परवेसिव क्यों है? क्योंकि ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप, मिडिल, लोअर, सबको प्लान करना है. टॉप को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मिडिल को डिपार्टमेंट, डे टू डे के लिए, लोअर. प्लानिंग कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि प्लान्स आर ड्रॉन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड और जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होगा नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक क्यों है? फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? प्लानिंग हेल्प्स टू पीप इनटू द फ्यूचर, प्रिडिक्ट इट, एनालाइज इट. ठीक है. डिसीजन मेकिंग, नो चॉइस, नो प्लानिंग. वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करना. और मेंटल एक्सरसाइज क्यों? कि इट इज यूज ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फारसाइटनेस. ठीक है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन. ठीक है. अब अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कि भैया प्लानिंग की क्या लिमिटेशन है. फर्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. टू वर्ड्स आर देयर, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल क्या होता है? जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं. रिजिड जो फिक्स हो गया. तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी क्या है? वंस द प्लान्स आर ड्रॉन इट इज डिफिकल्ट टू मेक एनी चेंजेस इन दैम. कि एक बार प्लान बना दिया गया तो उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है. और दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इज ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. क्या ध्यान रखना है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक बार प्लान ड्रॉन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है? दिस प्लान डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड मैनेजर्स मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू चेंज इट. एक बार जो प्लान बना दिया गया, प्लान मतलब कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर दिया गया कि काम को कैसे पूरा करना है, देन मैनेजर्स आर नॉट इन पोजीशन टू मेक चेंजेस इन देम. और जबकि प्लानिंग अपन बिजनेस के लिए कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए, इन्वायरमेंट क्या होता है? डायनामिक चेंज होता रहता है. तो उनमें भी प्लान्स को में भी आपको चेंज करना पड़ेगा. और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इट इज़ द लिमिटेशन. क्यों? क्योंकि बदलते वक्त के साथ अगर आपने प्लान नहीं बदला तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी. तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी कैसे बेटा? जो प्लान्स एक बार ड्रॉन हो गए वो डिसाइड कर रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन और मैनेजर्स आर नॉट इन पोजिशन to change them and this leads to the rigidity. Is it clear? Second, ये इसी से रिलेटेड, प्लानिंग may not work in dynamic environment.
डायनामिक मीन्स व्हाट, जो चेंज होता रहता है. तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनामिक इन्वायरमेंट वाला क्या पार्ट है बेटा, कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, नथिंग इज कांस्टेंट. ठीक है, प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग. प्लानिंग में आप सारी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और दैट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन. क्या, वापस समझना क्या कह रहे हैं, कि द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, नथिंग इज कॉन्स्टेंट, प्लानिंग कैन नॉट फोरसी ईच एंड एवरीथिंग, और ये इसकी लिमिटेशन है. क्योंकि आपने प्लान कल के लिए किया, बट आप कल क्या होने वाला एग्जैक्टली बता सकते हो क्या, नहीं. तो आप जब उन चीज़ों को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो वो ही एक लिमिटेशन है किसका, प्लानिंग का. थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. हाउ, दो प्लानिंग इज कंसीडर्ड एज परवेसिव, अभी अपन ने बात किया था फीचर में कि सब लेवल पे करना है, बट वास्तव में प्लान्स आर ड्रॉन बाय टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर जस्ट हैज टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान्स. सो द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है, इन मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा. वापस समझना कैसे कर रहा है बेटा क्रिएटिविटी खत्म, कि प्लानिंग इज मोस्टली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल एंड लोअर हैज जस्ट टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स. उनको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मौका नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे उनके अंदर जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है दैट विल बी रिड्यूस्ड. इज इट क्लियर? फोर्थ, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग करने में बहुत खर्चा लगता है. इट कैन बी इन, व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व्ड, दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी. प्लान्स करने के लिए आपको बहुत सारा समय और पैसा खर्च करना है और पड़ता है. समटाइम्स जितना आपने खर्चा किया उतना उससे बेनिफिट भी नहीं मिलना है. तो ऐसे केस में प्लानिंग करने से फ़ायदा क्या, क्या ध्यान रखना है बेटा, व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ देम, और दिस कॉस्ट किससे रिलेटेड हो गया, मे बी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड money. The cost incurred sometimes may not justify the benefit derived from the plans. ठीक है, नेक्स्ट इज जो इंटर रिलेटेड है, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. समटाइम्स it takes so much time to make the plans that there is no time left for its implementation. दोनों इंटर रिलेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली. जो चीज़ टाइम कंज्यूमिंग होगी वो कॉस्टली भी होगी. टाइम कंज्यूमिंग में क्या कह रहे हैं, समटाइम्स प्लान्स ड्रॉइंग या टू ड्रॉ प्लान्स टेक सो मच टाइम, देयर इज नो टाइम लेफ्ट टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स. एंड लास्ट वन क्या है बेटा हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस. सिर्फ प्लान करने से सक्सेस मिलता तो हर आदमी करोड़पति होता. इफ देर इज नो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, देर इज नो वैल्यू ऑफ प्लानिंग. अगर आपने प्लान्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया तो उन प्लान्स की कोई वैल्यू नहीं है. द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड. Success of organization depend upon proper drawing of plans and proper implementation. Any plan need to be translated into action. ये 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है. Any plans need to be translated into action or it becomes meaningless. जो भी प्लान किया है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, otherwise it becomes meaningless. Plans need to be converted into एक्शन, अदरवाइज इट बिकम्स मीनिंगलेस. सिर्फ प्लानिंग करने से सक्सेस नहीं मिलेगी. प्लान्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. इफ यू फेल्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स, देर इज नो वैल्यू, देर इज नो guarantee that you will get the success. Is it clear? So what are the limitation of planning? Planning leads to rigidity. कैसे? Once the plans are drawn, it is very difficult to make the changes in them, and this kind of rigidity is the biggest limitation of planning. Planning may not work in a dynamic environment. Business environment क्या है? Dynamic है, जिसमें constant changes आ रहे हैं, ठीक है. और अगर क्योंकि आप फ्यूचर को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो तो वो आपके लिए लिमिटेशन है. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. हाउ? The top management usually make the plans, lower and middle just implement them, and this kind of things reduce the creativity and innovation involved in that. Planning involves huge cost.
Plans they involve huge cost in drawing up in terms of time and money, ठीक है, एंड समटाइम उसमें पैसा इतना लग गया जितना उससे बेनिफिट भी नहीं मिला. टाइम कंज्यूमिंग, समटाइम्स प्लान take so much time that there is no time left for their implementation. सबसे important, planning does not guarantee success. Plans are to be converted into action, otherwise it becomes meaningless. How good plans are, it will only be valuable when that plans are converted into action. अगर आपने कितना भी अच्छा प्लान किया उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट प्लान. इज इट क्लियर? आई होप लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इज क्लियर. थैंक यू एवरीबडी, हैव ए नाइस डे.